Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 8 and the name of our chapter is Structure of Earth. And today we are going to study about soil and its characteristics. So जैसे कि आपको पता है हम दुनिया में यानी कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, इस पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं जैसे कि लैंड है, वाटर है, सॉइल है. तो हम इन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने पानी के बारे में पढ़ा, उनके रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा. आज हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लेक्चर, लेट्स क्विकली recap what we did in the previous lecture. For that you have to listen to the questions very carefully and then answer them. So quickly tell me, what are earth water resources? पानी पे कितनी तरह के water resources हैं? That is ocean and fresh water. So now quickly tell me, which one is the largest source of water on earth? That is ocean. यानी कि ocean जो resource है, that is the biggest source of water on earth. Okay my dear students, now is the time for an activity. So अब आपको करना क्या है, आपको मुझे बताना है कि identify the given soils. मैं आपको कुछ pictures soils की दिखाऊंगी, तो आपने उनको identify करना है, आपने उनको देखकर बताना है कि ये कौन सी soil है and what type of soil is used for molding. So my dear students, here you can see picture A and picture B. So picture A कौन सी soil आपको लग रही है? दानेदार सी है, जरा granulated सी है. ये कौन सी soil है? I think this is sand, है ना? देखने से granulated मोटी मोटी सी लग रही है. And the second one is चिकनी मिट्टी लग रही है जिसको मोल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. This is clay. So we can, the next question was, कौन सी क्ले को मोल्डिंग के लिए या मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो दैट इज क्ले, जिसको उर्दू में चिकनी मिट्टी भी कहा जाता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो क्योंकि हम मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम तमाम चीज़ें जो है हम सॉइल यानी कि मिट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. Okay my dear students, in today's lecture students will be able to investigate the composition and characteristics of different soils. So आज के लेक्चर में बच्चे जो है soil की मुख्तलिफ characteristics को और composition जो है किस तरीके से ये बनती है, क्या इसकी properties है, कैसे ये एक दूसरे से different है, हम ये discuss करेंगे. So my dear students, now let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me that why is soil called a natural resource? यानी कि जो मिट्टी है इसको natural क्यों कहा जाता है? Because it exists naturally on the earth. यानी कि ये नेचर के साथ ही जो है वो एग्जिस्ट करती है. इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि इससे हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, इससे ड्राइव करते हैं. सो सॉइल इज नेचुरल बिकॉज इट एग्जिस्ट नेचुरली इन द एनवायरमेंट. So now is the time for reading, for which you have to open page number 107 in your Science 5 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, now let's quickly start the reading, for which you have to put your fingers where I will read. Soil and its characteristics. Soil is part of Earth's crust. यानी कि मिट्टी जो है ये अर्थ की क्रस्ट का हिस्सा है. So जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को अर्थ दिखाया था और हमने इसको डिवाइड किया था, इसकी लेयर्स के बारे में स्टडी किया था. सो द टॉप मोस्ट पार्ट दैट वाज द क्रस्ट. सॉइल मिट्टी इसका हिस्सा है, जैसे कि पानी इसका हिस्सा है, इसी तरह मिट्टी भी क्रस्ट का हिस्सा है. और आज हम मिट्टी के बारे में मुख्तलिफ चीजें पढ़ेंगे. It is the upper layer of the earth in which plants grow. Soil is a mixture of organic remains, clay and rock particles. Soil has the following basic characteristics. However, condition of these characteristics may be changed. So my dear students, मिट्टी जो है ये सबसे ऊपर अर्थ के मौजूद है. इट इज द टॉप मोस्ट लेयर, और पौधे जो हैं वो इसी लेयर में ग्रो करते हैं. इसके अलावा इसकी मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं और इसकी जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स और कंडीशंस हैं हर सॉइल की, वो चेंज भी हो सकती हैं. सो सबसे पहले हम इसकी अब करेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पोरोसिटी, यानी कि कितनी पोरस है. Porosity of soil is the average gap between the two soil particles. This space is occupied by air and water. Porosity increases with an increase in the percentage of organic matter and size of the soil particles. Soil becomes less porous when increasing depth. With increasing depth, pores or spaces are responsible for plant growth as they contain air and water.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे यानी कि हम मिट्टी को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सॉइल जो है वो मुख्तलिफ होती है इफ वी डिस्कस अबाउट द पोर्सिटी। सो अगर आप सॉइल को टच करते हैं, यानी कि आप इसको हाथ में लेते हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये कितनी पोरस है, यानी कि इसके दरमियान कितना गैप है। और बेसिकली पोर्सिटी क्या होती है, यानी कि जो जर्रे होते हैं सॉइल के, दो जर्रों के दरमियान में कितना गैप है, उसको हम उसकी पोर्सिटी उससे जो है वो डिस्कस करते हैं। सो जैसे जैसे जमीन को खोदते जाते हैं और डीप जाते जाते हैं, वैसे वैसे पोर्सिटी जो है, यानी कि जो जर्रों के दरमियान में गैप है, वो कम होता जाता है। इसके अलावा पोर्सिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, यानी कि हाउ फाइन आर द और बिग द पार्टिकल्स। जितने बिग पार्टिकल्स होंगे सॉइल के, उतनी ज्यादा पोर्सिटी होगी। जितने बारीक और फाइन पार्टिकल्स होंगे, पोर्सिटी जो है वो उतनी ही कम हो जाएगी। अभी आगे मैं आपको जो है सॉइल के कुछ सैंपल्स दिखाऊंगी, जिससे हम उसकी पोर्सिटी जो है वो देखेंगे। लेकिन हम पहले तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, ताकि हम वन बाय वन उनको इंप्लीमेंट कर सकें। सो हियर यू कैन सी, जो दो पार्टिकल्स के दरमियान में गैप है, दिस इज कॉल्ड द पोर्स, और इसी से जो है वो पोर्सिटी डिटरमिन होती है। Next characteristic is the color. Colors of soil is first-hand identification factor. It tells us about the type of the minerals as well as various processes going on in the soil. For example, the red color in the soil indicates an abundance of iron-based structure. So, my dear students, अब आ जाता है कलर। सबसे पहले हम कलर को देखते हैं सॉइल के, और उससे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये किस किस्म की सॉइल है। सो दिस इज द फर्स्ट हैंड आइडेंटिफिकेशन। और किस तरीके से कलर्स से जो है वो मुख्तलिफ सॉइल की डिटर्मिनेशन हो सकती है, यानी कि अगर सॉइल का रंग जो है वो ज्यादा लाल की तरफ है, तो इसका मतलब है इट इज अबंडेंट इन आयरन, यानी कि वो आयरन में अबंडेंस है, यानी कि ज्यादती है उसके अंदर। डार्क कलर इंडिकेट्स दैट द सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, सो सॉइल इज फर्टाइल। अगर सॉइल जो है वो डार्क कलर की है, इट इज टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स ब्लैकिश कलर, डार्क ब्राउनिश कलर की तरफ है, तो इसका मतलब है सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज्यादा है। आपने कभी खाद वाली सॉइल भी देखी होगी, और आप देख के बता सकते हैं कि वो फर्टाइल है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज्यादा शामिल होता है। ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज। इसके अलावा जो काले रंग की मिट्टी होती है, उसके अंदर मैग्नीज जो है वो ज्यादा होता है। Whitish color of soil indicates the presence of a high amount of chalk, carbonates, lime in the soil. इसके अलावा जो मिट्टी सफेद होती है, उसके अंदर चौकी सी फील होती है, उसका मतलब उसके अंदर लाइमस्टोन जो है वो ज्यादा है। Next come the texture of the soil. Texture means fineness or coarseness of a soil. It is referred to the relative proportion of sand, silt and clay in the soil. On the basis of texture, there are following types of soil, that is sandy soil, clayey soil, silty soil, peaty soil, chalky soil and loamy soil. So my dear students, यानी कि टेक्सचर के ऊपर जो है सॉइल को मुख्तलिफ सॉइल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, क्योंकि जो है इससे पार्टिकल्स के बारे में पता है चलता है कि कितने वो फाइन है या कितने वो कोरस हैं, रफ हैं, बड़े हैं या छोटे हैं। तो इससे जो है इस चीज को डिटरमिन किया जाता है कि सॉइल जो है वो किस तरह की है। सो इस डिवीजन के ऊपर सॉइल को 6 तरह की सॉइल्स में डिवाइड किया गया है। सैंडी, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, क्ले बहुत फाइन होती है, सिल्टी सॉइल जो होती है ये भी फिसलनी मिट्टी होती है, इसके भी थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा पीटी सॉइल होती है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। देन कम्स द चॉकी सॉइल, इसके अंदर लाइमस्टोन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। एंड देन कम्स द लूमी सॉइल which is the best soil for the growth of the plants. Naturally ये आपको हर जगह मिल जाती है। Then comes the water holding capacity, यानी कि आपकी मिट्टी के अंदर पानी जज्ब करने की कितनी सलाहियत है, इसको भी एक कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है मिट्टी की। यानी कि जो क्लेई सॉइल होती है, यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है, उसके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की काफी ज्यादा सलाहियत होती है। सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज एंड पोर्सिटी। ग्रेटर द पार्टिकल साइज, लोअर द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। यानी कि अगर पार्टिकल्स जो है वो मिट्टी के बड़े बड़े हैं, तो उसके अंदर पानी को होल्ड करने की सलाहियत जो है वो बहुत कम हो जाएगी। जितने फाइन पार्टिकल्स होंगे, उतना ही ज्यादा जो है वो पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकेगा।
Then the next thing is particle size. Particle size is the characteristic property of soil and its types. यानी कि जो particles हैं, किस तरह के particles हैं soil के, वो उसकी मुख्तलिफ characteristics पे depend करता है. यानी कि clay के जो particles होते हैं उनका size जो है वो 0.002 mm होता है. Then silt का size जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, it is 0.02. Then comes the sand. फाइन सैंड का जो साइज होता है इट इज फ्रॉम 0.02 टू 0.0. देन कम्स द सैंड यानी कि जो द कोरस वन व्हिच हैज बिग पार्टिकल्स, इट्स साइज इज 0.2 टू 2 mm. देन कम्स द ग्रेवल, फाइन ग्रेवल यानी कि जो छोटे होते हैं, दैट इज फ्रॉम 2 to 5 mm. Then comes the gravel that is coarse and that is big, that is less than or bigger than 5 mm. ओके, सो इस बुनियाद पर आप मुख्तलिफ यानी कि साइज की बिना पर पार्टिकल का कितना साइज है उसके ऊपर जो है आप मुख्तलिफ जो है वो सॉइल को करेक्टराइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. So then comes the consistency. Consistency of soil means how well it sticks together. All types of soils share these characteristics in general. Portion of soil and particle size both contributes in defining the consistency. So my dear students, then comes the consistency of the soil. यानी कि ये bind कितना अच्छा होती है, यानी कि जब आप इसको हाथ में लेकर ऐसे करेंगे तो तब देखें कि ये कितना अच्छा बाइंड हो रही है. आप मुख्तलिफ सॉइल को इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि जब आप उनको बाइंड करने की कोशिश करें तो सम ऑफ देम बाइंड एंड सम ऑफ देम डू नॉट बाइंड. तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये पार्टिकल सॉइल के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसकी पोर्सिटी पे डिपेंड करता है, उसके टेक्सचर पे डिपेंड करता है. इसके अलावा हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, ये उस पे भी डिपेंड करता है. सो अब मैं आपको कुछ सैंपल्स मैंने कलेक्ट किए हैं सॉइल के, मैं आपको उनको दिखाऊंगी. और अभी फिलहाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है कि द सॉइल इज पोरस, यानी कि इसके दरमियान में गैप है. सो अब मैं आपको जो मैंने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, आई हैव कलेक्टेड 3 सैंपल्स ऑफ सॉइल, और उसके ऊपर जो है वो हम तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को 1 by 1 कोशिश करेंगे कि अप्लाई करें. ठीक है. So here you can see 3 samples of soil. सबसे पहले हम फर्स्ट हैंड आइडेंटिफिकेशन इसकी करते हैं, दैट इज द कलर. तीनों सॉइल का कलर जो है यू कैन सी दैट इट्स डिफरेंट. ठीक है. सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं. सो इसका कलर अगर आप देखें तो इट इज ब्राउन, देन इट लुक्स स्लाइटली डार्क. ठीक है, ये इससे डार्क है. एंड दिस वन इट इज स्लाइटली ग्रेइश, यानी कि ये कलर जो है तीनों का डिफरेंट है. अब हम जरा इसकी पोर्सिटी के ऊपर आते हैं. पोर्सिटी से हम ये हिसाब लगाएंगे कि इनके ग्रेन्स कितने बड़े हैं, और इनके दरमियान में ज़ाहिर है जितने बड़े ग्रेन्स होंगे उतना ही इनके दरमियान गैप ज़्यादा होगा. सो अगर हम इस तरफ आए तो आप इसको देख सकते हैं कि इसके ग्रेन्स जो हैं हाथों में पकड़ने से ही मुझे काफ़ी बड़े और खुरदरे कोरस लग रहे हैं. ठीक है. देन दिस वन इट फील्स लेस कोरस. आप ये देखें टेक्सचर, आप इसका ज़रा देखते जाएं, है ना. And then comes this one, it is very fine. ये देखिए कैसे आपस में ये बिल्कुल मिली हुई है ना. So this is how 3 of the samples are different from one another. अब जरा हम इसके टेक्सचर के ऊपर आ जाते हैं. So टेक्सचर को अगर आप देखें तो इसका टेक्सचर काफी खुरदरा है, कोरस है. इसका टेक्सचर जो है वो स्लाइटली सॉफ्ट है, और अगर आप इसका टेक्सचर देखें तो ये बहुत ही फाइन है. ठीक है. अब कंसिस्टेंसी कैसी है इनकी, और कलर वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो ये जरा डार्क कलर की लग रही है, तो इसका मतलब इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो काफी ज्यादा है. तो खाद की जो है मिलने की वजह से इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शामिल हुई हैं. अच्छा, इसके बाद ये जो है ये काफी चिकनी मिट्टी है, ये वाली जो है फाइन है ये बहुत ही, और इसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अब हम इन सब की देखते हैं. ठीक है. तो मैं अगर इनके अंदर पानी डालूं और इसके बाद मैं इनको ज्वाइन करने की कोशिश करूंगी तो हम जरा देखेंगे कि किसकी कंसिस्टेंसी कैसी है. सो सबसे पहले मैं द फाइन वन उसमें मैं डालती हूं, और आप देखेंगे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन सी मिट्टी जो है वो पानी कर रही है. इससे मैंने थोड़ा सा जरा ना ज्यादा डाल दिया पानी. सो सब में इक्वल पानी आपको डालना है. ये तो सारा इसमें से निकल जाएगा बिकॉज इट इज वेरी पोरस. सो अगर हम इनको उठा के देखें तो ये बिल्कुल नीचे से वेट नहीं हुआ,
और इसका मतलब है इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। एंड बाय द वे दिस इज क्ले, ये क्ले है और इसको मैं अगर हाथ में उठाऊं और मैं चाहूं तो मैं इसको मोल्ड भी कर सकती हूं। ये देखें कितने प्रॉपरली, कितने अच्छे तरीके से जो है ये मोल्ड हो जाती है। आप इससे कोई भी चीज बना सकते हैं, बच्चे अक्सर बर्तन भी बनाते हैं, घर बना लेते हैं इनसे। सो दिस इज फाइन, वेरी फाइन। और इसी वजह से इसके अंदर पानी जो है वो ठहर रहा है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है। देन दिस वन, इसको अगर मैं उठाऊं, पानी में से इसके नीचे से भी नहीं निकला तो इसकी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इट इज क्वाइट बेटर। ठीक है। देन कम्स द सैंड। सो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है आप ये देखें, पानी इसके नीचे से सारा जो है वो नीचे निकल गया। सो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज इट इज वेरी पोरस। इसके पार्टिकल्स भी, ग्रेन्स भी बड़े हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो अंदर रिटेन नहीं हो रहा। अब अगर इन सबको हम हाथ में उठाकर देखें तो इट जॉइंस वेरी वेल। ये देखें, इट जॉइंस वेरी वेल। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं इसको उठाऊं तो इट ऑल्सो जॉइंस वेल, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं हो रहा है, इससे मैं मोल्ड नहीं कर सकती किसी चीज को। और विद माई क्लीन हैंड इफ आई होल्ड दिस वन तो ये बिखर जाती है। ये देखें ये किस तरीके से बिखर जाती है। तो अगर मैं इसको इधर रखूंगी भी तो ये थोड़ी देर में सारी बिखर जाती है। वेयर एज इफ यू कंपेयर दिस, तो आप ये देखिए कि ये फाइन होने की वजह से पार्टिकल्स फाइन है, टेक्सचर फाइन है, इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है जिसकी वजह से इट जॉइंस वेरी वेल। सो दिस इज बेसिकली क्ले, दिस इज लूमी सॉइल विद फर्टिलाइजर, यानी कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर जरा ज्यादा है, एंड दिस वन इज सैंड। ठीक है, तो इस वजह से हमने इनको कैटेगराइज किया इनटू डिफरेंट कंडीशंस। अब मेरे हाथ काफी गंदे हो गए, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। Okay, so next is porosity, and here you can see with the color of the objects, आप ये देख सकते हैं color of the soil, soil जो है मुख्तलिफ उनमें categorize हो रही है। The one which is blackish in color, it has manganese in it. One which is, it has manganese in it. This is dark in color, it has organic matter. Now this is red in color, so it has iron rich it is, and this is whitish in color, so it has chalk in it. Okay, so here you can see the size, किस तरीके से जो मुख्तलिफ साइजेस हैं उनसे हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि किस किस्म की सॉइल जो है, इससे भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। सो इट इज वेरी कोरस, रफ है, ग्रैन्यूल्स बड़े हैं, while this one is fine. Okay, so here you can see sand, it has more porosity in it, granules are bigger, size जो है इसके हिसाब से आप ये देखें किस तरीके से 0.05 से लेके 2 mm तक है। Then comes the silt. Silt के पार्टिकल जो है it is from 0.002 to 0.05 mm. Then comes the क्ले। क्ले के पार्टिकल जो है ये बहुत ही ज्यादा फाइन होते हैं, इनके दरमियान जो गैप है वो बहुत कम होता है, तो यू कैन सी कि इनकी पोर्सिटी भी कम हो जाती है। Okay, so my dear students, now is the time for evaluation. So for evaluation, you can download, you will answer the following questions. So you can see the questions on your screen now. So what is porosity of soil? So soil की porosity से हम क्या चीज determine करते हैं? So the porosity of soil determines that what is the gap between the particles of the soil. यानी कि particles के दरमियान में कितना gap है? So this is the porosity. So next is what is the identification of different colors of soil. So what is the identification? क्या मतलब है, हम क्या identify करते हैं from the colors of soil? So it identifies the presence of different minerals in it. ठीक है, तो उसकी बुनियाद पर हम इसको differentiate करते हैं. For example, the one which is red in color, so it is abundant in iron. So this is first hand identification. Then what is the relation of particle size and water holding capacity? So particle size का water holding capacity से क्या relation है, मैंने आपको अभी explain किया था. So the more fine particles a soil has, it will hold more water.
it has more water holding capacity, and the one which has bigger particles, the more porosity it has. So इससे क्या चीज आइडेंटिफाई होगी? इससे ये चीज आइडेंटिफाई होगी that it will hold less water. It will hold less water. So what is consistency of soil? Soil की consistency क्या होती है? Soil की consistency मुख्तलिफ चीजों पे depend करती है. It depends on the texture, it depends on the particle size, it depends on the water holding capacity, it also depends on the texture. So all of these things collectively make up the consistency of the soil. Okay, my dear students, the next thing is the practice for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. So write down your name and the roll number, and then what is soil? Soil is the uppermost part of the earth crust and where the plants grow. So enlist the characteristics of the soil. So आपको 6 characteristics जो हैं उनको name करना है. You can take help from the book and then fill in the blanks. Dash can be increased with the increase of organic matter and size of the particles. So fertility. So texture means dash and dash. So texture means the size of the particle and the porosity. So dash refer to the relative proportion of sand, silt and clay in soil. So greater the dash, lower the dash. Greater the size, the lower will be the water holding capacity. Black color of soil indicates, what does it indicate? It indicates manganese, presence of manganese. And the dark color of soil indicates the presence of organic matter. So write the size of soil particles. So you can also take help from the book, and you can write the accurate size of clay, silt, gravel, the fine one, and the sand, which is coarse one. So you have to write down their size. So my dear students, pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do MCQ number 4, 5 and 8 given on page number 133, and you will do question number 6 and 8 from section number B given on page number 114. So my dear students, today we have learnt that soil is the mixture of organic matter remains clay and rock particles, and the characteristic of soil are porosity, color, texture, that means fineness and coarseness, water holding capacity, particle size and consistency. So all of these are the characteristics of the soil. I hope now you know all about the soil and its characteristics, और इन्हीं characteristics की वजह से soil जो है वो मुख्तलिफ types की होती है. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.